وہ اس کی آواز پر ایک جھٹکے سے مڑی تھی۔ پیچھے کر نفیس مسکراتی نگاہوں سے اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سبھی پیشانی پر نگاہواری سے لکیریں نمودار ہوئیں۔ میں جانتی ہوں کہ ہر رنگ جچتا ہے مجھ پر، اس لیے آپ کی آگاہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پر اٹھائی سے کہہ کر اس نے چہرہ پھیرا، مگر اس نے تو جیسے ہی سنا تھا آنکھیں بڑھ کر اس کی خلافی آنکھوں میں جھانکا۔ شہد رنگ آنکھیں ناگواری سے چمک اٹھی تھیں۔ اتنا غصہ صرف میرے لیے، اور جب دوسروں سے بات کرتی ہوں تب تو منہ پھول چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں اتنا ظلم صرف مجھ پر ہی؟ کیوں کوئی گستاخی کر دی کیا میں نے؟ مسکراتے لہجے میں کہتا وہ مسلسل اس کے چہرے کا نظاروں سے طواف کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی عمل کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ گستاخی کرنے والوں کو میں صرف لفظوں کی مار نہیں مارتی، ان کے لیے ہمیشہ کڑی سزاؤں کا بندوبست کیے رہتی ہوں میں۔ اور جہاں تک بات ہے آپ کی ایک ناقدانہ نگاہ اس پر ڈالی، تو آپ کا شمار نہ تو میں نے کبھی قرابت داروں میں کیا اور نہ ہی میرا آئندہ ایسا کچھ کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ سے میرے رشتے میرے تایا کے بیٹے ہیں، جس سے بات کرنا مجھے سخت ناپسند ہے، کیونکہ میں ہر کسی کو نہیں پسند کرتی۔ بہت کرارت سے جواب دے کر اس نے نفیس کے بدلتے تاثرات دیکھ کر اس کے چہرے پہ یکدم حدت نمودار ہوئی تھی۔ بہت غرور نہ خود پر تمہیں جی ہے تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ رک کر ایک دم برہمی سے پوچھا تو نفیس نے دانت پیسے۔ ویسے تو بڑی تمیزدار اور لوگ تو کہتے ہیں عمل کو بات کرنے نہیں آتی، کسی سے کچھ پوچھو تو جواب نہیں آتا، اور اگر جو انہوں نے تمہاری شعلہ بیانی سنی تو ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی ان کی۔ اس سے کندھے اچکائے۔ غلط فہمی کا شکار وہ ہیں تو رہے، میں نے نہیں کہا تھا لوگوں کو میرے بارے میں اندازے قائم کریں، میں جو ہوں جیسی ہوں، اگر انہیں یا کسی اور کو بھی۔ ایک پل کو اسے دیکھ کر آنکھیں گھمائی تھی۔ مجھ سے مسئلہ ہے نا، تو نہ آیا کرے میرے گھر، نہ کیا کرے مجھ سے بات۔ میں تو کسی کی پیر نہیں پڑی جا کر کے آئے مجھ سے بات کریں، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے دماغ خراب کرنے۔ سر جھٹکا۔ آج بڑی غلط فہمی دور ہو گئی میری ویسی بھی۔ اسے چھپتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر وہ بولا تو امن سے الٹ کان کے پیچھے اڑسی چاندی کی ایک بالی لمحے کو چمکی تھی۔ ہو گئی نا، آئندہ مجھ سے بات مت کیجیے گا، اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو وہ رہا دروازہ۔ ہاتھ لمبا کر کے اسے داخل دروازہ دکھایا۔ آپ جا سکتے ہیں۔ اتنے تاثرات لے وہ اس کے منہ پر دروازہ گویا بند کر کے پلٹی تھی۔ کمر پہ گرتے ریشمی سے بال لہرا گئے تھے۔ کھلے ٹراؤزر میں اس کے قد اور دراز لگ رہا تھا۔ چاندی کی بالیاں اس کے چار پہل کھولے رہی تھی۔ اسی وقت ارجمن کچن سے نکلے تو اسے ناگواری سے دیکھا۔ عمل جو پہلے ہی گھومے ہوئے دماغ کے ساتھ کچن میں جانی پڑی تھی، نوٹس کیے بغیر آگے بڑھی۔ ارجمن نے کلس کر اسے آواز دی، عمل۔ اس نے بس چہرہ گھمایا تھا۔ کچھ اور عورتیں بھی دونوں کی جانب متوجہ ہو گئی تھیں۔ دور سے شاید وہ نفیس کو اس کے ساتھ بات کرتا دیکھ چکی تھی، اور اسی بات پر انہیں بے طرح غصہ چڑھا تھا۔ یہ کیا تم نے بال کھلے رکھے اپنے؟ ہاں تمہیں تھوڑے دنوں بعد پہلے سمجھایا نہیں تھا میں نے کہ یوں اس طرح مت گھوما کرو؟ لوگوں کا ایمان خراب کرنے پہ تلی ہوئی ہے یہ لڑکی۔ ایک پل کو سب کچھ رک سا گیا تھا۔ لاؤنج میں ملازمان، سارے مہمان اب دونوں کی جانب بری طرح سے متوجہ تھے۔ داخل دروازے سے اندر آتا ولی بھی ٹھہر سا گیا تھا۔ وہ اچھا والے انداز میں اس کی جانب مڑی تھی، پھر ہاتھ باندھ کر نے سرد نظروں سے دیکھا۔ عمل غصے میں تھی، سب غصے میں۔ پہلے بیٹا اب اس کی ماں۔ کوئی پرابلم ہے آپ کو؟ کوئی مسئلہ ہے؟ اس کی آواز برف ہو رہی تھی۔ ارجمن نے اس کے انداز میں گڑبڑا سی گئی۔ میں تمہیں اچھی طرح سمجھا رہی ہوں، تم الٹا مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہو۔ ارے دیکھو تو ذرا سی ٹانگ جتنی لڑکی کو۔ وہ اب اونچا بول کر سب کو متوجہ کر رہی تھی۔ بی جان بھی کچن کے دروازے پہ چلی آئی، مگر عمل ویسی ہی کھڑی رہی۔ یہ اچھی بات جا کر اپنی بیٹی کو سمجھائیں تائی جان، کیونکہ مجھے تو میرے بابا نے کبھی بھی بال کھولنے سے منع نہیں کیا، نہ ہی میری بی جان کو اس سے کوئی مسئلہ ہے۔ اگر مسئلہ ہے تو آپ کو یا آپ کے بیٹے کو ہے، لیکن میں نے آپ لوگوں کو خوش کرنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ جیسا آپ چاہیں گے میں خود ویسا ہی ڈھلتی جاؤں۔ مجھے کھلے بال اچھے لگتے ہیں اور میں انہیں ایسے ہی کھول کر رکھوں گی۔ آپ کی بیٹی بال اس لیے نہیں کھولتی کیونکہ اس کے بال کھولنے لائق ہی نہیں۔ وہ رکی، آنکھیں اب تک ویسی ہی سپاٹی اور لہجہ سرد۔ ارجمن کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ مجھے آئندہ اس طرح مت کہیے گا تائی جی، میں بہت عزت کرتی ہوں آپ کی، اور میں نہیں چاہتی کہ مجھ سے کوئی گستاخی سرزد ہو، کیونکہ میری زبان کا ذائقہ تو اب تک آپ چکھی ہی چکی ہوں گی۔ آخر میں مسکرا کر پلٹ کے ولی ہلکا سا مسکرایا۔ ارجمن نے ہنگار کر جسے آس پاس جمی بے عزتی کو ختم کیا تھا۔ زمانی نے کچن میں داخل ہوتی عمل کو خفی سے دیکھا تو اس سے شانے اچکائے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکراتا ہوا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ واقعی کیا تیکھا ذائقہ ہے آپ کی زبان کا بی بی، لان کے دوسری طرف جاتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔
निगाह बेगम और हाशिम बहुत दिन से मेहमानों को लेकर रस्म के लिए हवेली के अंदर दाखिल हुए तो बेख्तियार शोर सा उठा। लड़कियां दाखिल दरवाजे पे जमी, हाथों में गुलाब की पत्तियों से भरी प्लेटें उठाई हुई थी। इसने भी एक प्लेट पकड़ रखी थी और साथ ही नाजिया भी खड़ी थी। रोने के बाद जब मेकअप खराब हो गया था वो फिर से ठीक करके अब वो बस मददगी से प्लेट उठाई हुई थी। इसके साथ खड़ी अमल का मूड भी काफ़ी हद तक ऑफ हो चुका था। अगर जो शादी इसके भाइयों की ना होती तो कमरे में सो रही होती इस वक्त। बेजारी से मेहमानों को देखते हुए सोच रही थी, घर में लड़की दाखिल होते हुए इन पर फूल बरसाएगी। निगार बेगम और बीजान दरवाजे पर खड़ी एक दूसरे से गले मिल रही थी। मुबारकबादों और हाल सवाल के बाद सबको सजे सजाए टीवी हॉल में ला बिठाया गया था। फिर कुछ देर बाद निसार और अख्तियार को भी झूले पर बिठाया गया। सफ़ेद कुर्तों में मलबूस इसके दोनों भाई भरपूर अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। इससे प्लेट रखकर हाथ में आपस में रगड़े। ठंड बढ़ गई थी, नाजिया ने भी इस वक्त हाथ रगड़े थे। ठंड कितनी बढ़ गई है एकदम से, नाजिया ने कहा तो इसने इस बात में सर हिलाया। फिर गर्दन घुमाकर वली को तलाशा, वो नजर नहीं आया तो निगाहें मायूसी से पलट आई। कुछ देर बाद इसने आगे बढ़कर दोनों भाइयों के सर से पैसे वार कर रस्म की और एक पतले पत्ते पर मली हल्दी में से ज़रा सा लेकर दोनों चेहरों पर लगाई। बख्तियार मुस्कुरा रहा था, अलबत्ता निसार झंझलाया था, मगर इसने शरारत से ज़रा सी हल्दी लेकर इसके नाक पर लगाई तो बहुत से कैफ में बुलंद हुए। रस्म हुई तो खाना शुरू कर दिया गया था। अब लोग छठ कर टोलियों में बैठे खाना खा रहे थे। इसने अपना प्लेट में से थोड़ी चावल लिया। भूख बिल्कुल ना होने की वजह से चम्मच चम्मच इधर उधर करने लगी। बार बार नजरें दाखिल दरवाजे तक जाकर पलट आती थी, पता नहीं कहाँ रह गया था वो। जब दिल बेचैन होने लगता तो वो उठकर दरवाजे के पास चली आई। पथरीली रविश पर ज़रा आगे को कदम बढ़ाया और लॉन की जानिब देखा तो उसे वो नज़र आ ही गया। वो दूर पर बिछी चारपाइयों पर वो डेरे के बहुत से मुलाजिम के साथ बैठता, किसी मुलाजिम की बात संजीदगी से सुनता। इसने कभी भी खुद को इस घर का फ़र्द बनाने की कोशिश नहीं की थी। इस वक्त भी मुलाजमों के दरमियान बैठा इसने खुद को वाकई इस घर का मुलाजिम समझा था, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। वली ने बात सुनते सुनते ज़रा सा रुख रविश की जानिब किया, जिसे किसी को देखता पाकर वो इसी तरह मुतवज्जा हुआ था। अमल बेख्तियार इतराफ में बनी झाड़ियों की ओट में हो गई। अभी कुछ देर पहले ही की बात इसे बिल्कुल नहीं भूली थी। बेदिली से प्लेट पकड़े वो अंदर आए, किचन में आकर प्लेट रखी और फिर लॉन्च में बैठी बीजान की तरफ आई। बीजान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कमरे में जा रही हूँ अपने, कहकर वजीर ने चढ़ती अपने कमरे में आ गई। फिर दुपट्टा एक जानिब को डालकर लेट गई। दिल बहुत बोझल हो रहा था। वली अहमद बेतरह याद आ रहा था। लॉन में बैठे वली ने गर्दन जरा उठाकर इस कमरे की जली लाइट को देखा, फिर गहरा सांस लेता दोबारा सा मुलाजिम की तरफ मुतवज्जा हुआ। तौबा भाई तौबा है इस लड़की की ज़बान, एक ज़रा सी बात क्या कर दी मैंने, वहाँ 50 लोगों के दरमियान रगड़ कर रख दिया इसने मुझे। अरे मैं कहती हूँ अच्छी ज़बान दराज लड़की को क्यों बनाऊँ अपने घर की बहू। गदब खुदा का, ना कुछ तमीज़ तहज़ीब, न बड़ों से बात करने का सलीका है इसे। तौबा। गुस्से से मिर्चियाँ चबाती अर्जुमन का बस न चलता था कि अमल की गर्दन कुचल कर रख दे। रह रह कर इन्हें अपने भरे मेहमानों के घर में हुई बेइज्जती याद आ रही थी। एक जानी सोफे पर थकी थकी सी बैठी नाजिया बेजारी से देखा इन्हें। तो क्या ज़रूरत थी आपको इतने लोगों में से कुछ बोलने की? इस दिन भी वो आई थी तो आपने कहीं इनका गुस्सा कहीं उतार दिया। ज़ाहिर है फिर कौन बर्दाश्त करता है इतना, वो बाल खोले या फिर बांधे, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। इस पर वली के रवैये की कसाफत चढ़ी थी। इसे बेजारी से माँ को कह दिया। कोई और वक्त होता तो वो बहुत लुत्फ़अंदाज होती सारी गपशप से, मगर अभी अभी दिल पर बहुत कुछ जमा हुआ था। इसी वक्त नज़ीर और नफीस लॉन्च में आकर बैठे। हाँ तो मैं तुम्हारे लिए ही बोल रही थी, अकल से पैदल, उन्होंने हाथ में जाकर कहा तो इसने सोफे की पुष्ट पर गिरा सर उठाया। क्या मतलब? मतलब ये कि सारे लोग इसे देख रहे थे, जय मुंगिया कर रहे थे, कैसी हसीन लड़की है। एक दूसरे से पूछ रहे थे किसकी बेटी का रिश्ता हुआ है इसका, यानी और एक तुम हो। हम उम्र हो तुम इसकी, मगर मजाल है जो किसी ने तुम्हारी तरफ जरा भर तवज्जो दी हो। सब इसे ही देख रहे थे, इसे सराह रहे थे। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी इससे ज़्यादा। और ये जो भाई है तुम्हारा, एक सख्त नज़र नफीस पे डाली तो वो खफीस सा होकर नजरें चुरा गया। कैसे पीछे पड़ा हुआ है इसके, देख लिया ना कितनी इज्जत की है इसने तुम्हारी और मेरी इस भरे मुजम्मे में। कल ही कहूँगी हसन से कि रिश्ता वापस ले, हमें नहीं करनी ऐसी बदज़बान लड़की। गुस्से से खौलती वो दुखते पैर पर हाथ ऊपर को चढ़ाकर बैठी तो नफीसा नाजिया बेवक्त सीधी हुई। नज़ीर अलबत्ता सब कुछ इंतहा गैर दिलचस्पी से देख रहा था। मेरा अमल का क्या मुकाबला भला।
नाज़िया ने बिगड़ कर कहा, मगर नफ़ीस अपनी ही कह रहा था, क्यों लेंगे आप रिश्ता वापस? कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ भी करने की, मैं इसी से शादी करूँगा, इस घर की बहू भी वही बनेगी बस। ठाकर कहता हुआ एकदम ही वो मुदबराना सा नज़र आने की कोशिश कर रहा था, मगर आगे से अर्जुमंद चमक कर बोली, और अभी कुछ देर पहले जो तुम्हारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है इसने, वो क्या वो भूल गए हो? इसके कान सुर्ख़ हुए हैं, मैं निकाल दूँगा सारे कस और पल और इसके अंदर से, मगर पहले इसे इस घर में आने दें। सारे बदले लूँगा इससे मैं, मगर अब दोबारा रिश्ता वापस लेने की बात नहीं करेंगी आप। तुमने देखा है क्या है इसमें आखिर? नज़ीर ने पहली दफ़ा बहुत बेज़ारियत से कहा तो नफ़ीस मुस्कुराया। एक बात है नज़ीर, वो जो भी हो, जैसी भी हो ज़बान की, मगर इस जैसी खूबसूरत इस पूरे गाँव में कोई नहीं है, वो मेरी हो, मेरी ही रहेगी। नज़ीर फिर से पीछे होकर बैठ गया। अर्जुमन ने आँखें निकाल कर इसे देखा। देखो तो ज़रा कैसी बेशर्मी से ज़िक्र कर रहा है इसकी खूबसूरती का। इसलिए तो पर बुरी लगती है मुझे कि किसी भी मर्द को लुभाने से बाज़ नहीं आती। एक ज़रा-सी शक्ल की अच्छी मिल गई, हमारे लिए मुसीबत ही हो गई है। वो अब तक गुस्से में इसे जली-कुटी सुना रही थी, मगर वो किसी की बात की परवाह किए बगैर उठ गया। नज़ीर भी इसके साथ ही उठा था। देखो तो नफ़ीस को कैसे माँ के मुँह पर बोल कर गया। अरे बेड़ा गर्क कोई समर का, मेरा बेटा मुझसे जुदा कर दिया इसने। बुलंद आवाज़ में अमल को गायबाना कोसने देती और उबलते गुस्से को बाहर निकाल रही थी। नाज़िया भी बेदिली से उठ गई तो वो कुछ देर बड़बड़ाकर चुप हो गईं। ज़र्द रोशनी वैसे ही लॉन्च को मुनव्वर किए हुए थे। दूसरी जानिब बीजान ने इसके कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। तो एक पल को इन्हें कुछ दिखाई न दिया। टटोल कर दीवार पर बटन तलाशा, फिर एकदम से बटन पर हाथ लगते कमरा जैसे रोशनी में नहा गया। वो बेड पर लेटी बाजू आँखों पर रखी हुई थी। एक पल को बाजू हटा फिर से रख लिया। लाइट बंद कर दें बीजान, इसकी कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी तो बीजान कमरे में चली आई। पीछे ही ज़मान दाखिल हुए थे। खंगारे तो वो बेसाख्ता उठ बैठी और बेड पे गिरा दुपट्टा उठाकर शानों पर फैलाया। गुलाबी लिबास मलका सा हो गया था और बाल बिखरे हुए थे। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, हाँ? और ये क्या किया था कुछ देर पहले? बेजान की खफ़ी पर इसने अनजान बनते हुए इन्हें देखा। क्या किया किया है मैंने? ज़बान भी सामने रखे सोफ़े पर बैठ चुके थे, अब इन दोनों को देख रहे थे। अनजान मत बनो, अभी जो अर्जुमन भाभी के साथ तुमने किया वो क्या था? कितनी बुरी बात है ऐसे सबके सामने इन्हें जवाब देना। अब्रू वहाँ बुलाए, वो बहुत खफ़ी से बोलकर ज़मान के साथ ही बैठ गए। तो क्या अकेले मैं कहती इनसे ये सब? मासूमियत से पूछे। ज़मान बेख्तियार मुस्कुराहट दबाई थी। चाहे मैं क्या पूछ रही हूँ, तुम क्या जवाब दे रही हो? इनकी खफ़ी सवार होने लगी। तुम्हें अदब का पता नहीं है क्या अर्जुमन भाभी का? किसी बात पे गुस्से में आ जाए तो बहुत बुरी तरह पेश आती हैं वो। जी, और जिस तरह थोड़ी देर पहले मेरे साथ पेश आई थी तो शायद तो वो भी नहीं था। मैं क्या कोई दीवार हूँ या घर में रखा कोई पौधा जिसे जो दिल चाहे बोल दे? उन्होंने भी सबके बीच में बहुत नाज़ेब तरीके से बहुत गलत बात कही थी मुझे। अगर इज़्ज़त इतनी प्यारी है ना तो ना कहें उल्टी-सीधी बातें। और बीजान, मैंने बिल्कुल भी कोई बदतमीज़ी नहीं की इनसे। क्या मैं चलाई थी इन पर? क्या मैंने कोई ऐसी बात कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी? नहीं ना, मैंने सिर्फ़ इनके अल्फ़ाज़ इनको लौटाए थे ताकि ज़रा इन्हें भी मालूम हो कि इनके लफ्ज़ कितने कड़वीले कसीले होते हैं। वो एक ही साँस में बोलकर ख़ामोश हो गए। चंद पल बीवी-जान कुछ बोल ही ना सकी। ज़मान भी ख़ामोशी से इसे देख रहे थे। लेकिन फिर भी अमल, तुम्हें नहीं बात करनी थी ऐसे इनसे। वो बड़ी हैं, ना सिर्फ़ मुझसे रिश्ते में बड़ी हैं, बल्कि ख़ानदानी लिहाज़ से भी इनका रुतबा बुलंद है। हमें आगे वाले को देख कर बात करनी होती है बच्चे। इनका नरम व लहज़ा हुआ हुआ था अब के, मगर अमल ने नफ़ी में सर हिलाया जिससे इनकी बात से इख्तिलाफ़ हो। बीजान, बड़ा होने का ये मतलब होता है, बड़े होने का मतलब होता है बड़ी कुर्बानियाँ देना। बड़े होने का मतलब होता है छोटों की गलतियों पर इनको सबक से समझाना। बड़े होने का मतलब होता है बहुत-बहुत बर्दाश्त करना। बड़े होने का मतलब होता है कि दूसरों को माफ़ करना। ये जो बड़े हैं रुतबे और उम्र के फ़र्क की वजह से खुद को आला गर्दाने देते हैं, गोया छोटे तो कदमों की धूल हो। इन्हें जो भी कहें ये सर झुकाकर अच्छा बुरा पी जाएँ, जवाबन बात गलत हो या सही उफ़ तक ना करें। ये है इनका बड़प्पन। लेकिन बीवी-जान, मैं ऐसी हरगिज़ नहीं हूँ। मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, 1965 की कोई दोशीज़ा नहीं हूँ जिसे 100 बातें भी सुना दोगे तो वो गूँगी-बहरी बनकर सुनती रहे, या फिर गलत सही की पहचान किए बगैर हाँ जी करती रहे। एहतरामन अगर इन्हीं बातों का नाम है तो फिर मुझे वाक़ई सब करना नहीं आता। और रही बात कि आगे वाले को देखकर बात करनी है तो बीजान, मैंने भी आज इन्हें समझा दिया कि मैं कोई बेज़बान पौधा या कोने में पड़ा कबाड़ खाना नहीं जिसे वो कहेंगी कहती रहें। आज के रवैये के बाद वो मुझे आइंदा कुछ भी कहने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगी। बिना साँस लिए बहुत रवानी से नरम मगर मज़बूत लहजे में बोलकर वो चुप हुई तो ज़मान ने गर्दन ज़रा तिरछी करके गुलाबी जोड़े में खिलती सी अमल को देखा। बीजान तो सख्ते में ही चली गई। अमल
बेयकीनी से बस यही निकला था इनके मुँह से। मैंने तुम्हें ये सब तो नहीं सिखाया था। बहुत सदमे से उन्होंने कहा तो अमल की मासूमियत तो मुस्कुराई। बिल्कुल आपने मुझे नहीं सिखाया सब, हालाँकि आपको सिखाना चाहिए था ये सब, मैंने खुद सीखा है बीजान अपनी मेहनत से। इसे आप मेरे तजुर्बे का निचोड़ समझ लें। अब किसने ज़मान को देखा तो वो खुलकर मुस्कुराए। वो कह तो रही थी ज़मानी कि इसने बदतमीज़ी नहीं की भाभी से, फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? भाभी ने जो भी कहा नहीं कहना चाहिए था इन्हें। अब तुम छोड़ो इस किस्से को और चलकर सो जाओ। मैं तो समझा पता नहीं क्या हो गया। लेकिन अब मेरी बेटी की बात सुनने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो अपने मसले खुद सुलझाने की अहलियत रखती है। चेहरा पैर के फेर कर एक नज़र से देखा तो इसके दिल से अंधा देखा सा बोझ हटाकर चलो कम से कम आगा जान तो इसे समझते थे। बीजान मान गई मगर अब भी इससे खफा ज़रूर थी। आइंदा ऐसा कुछ भी ना हो तो वो खुद ना सारे हिसाब किताब बराबर करने बैठी हो जाना। मुझे बताना, मैं खुद बात करूँगी। हाँ जी, आपको बता दूँ आप जी, जी, जी में सर हिलाती रहिएगा। आप ज़्यादा ना बोले माँ के सामने। चंद किताबें पढ़कर बोलना आ गया बड़ा। खफ़ी से इसे देखती हुई कमरे से बाहर निकली तो ज़मान भी मुस्कुराते हुए उठे, फिर इस तक आए, सर पर हाथ रखा। वो उनकी शफ़क़त तो मुस्कुराई थी। मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई है, मामलात को समझती है, इन्हें हल करना भी जानती है। लेकिन अगर कोई तुम्हारे इस हक बजा होने पर तुमसे बदला ले तो तुम अपने बाबा के पास आओगी। अगर बाबा के पास ना आ सको तो वली के पास जाना। हम दोनों बराबर हैं तुम्हारे लिए। आखिरी बात पे उसके चेहरे पे खिलती मुस्कुराहट गायब हुई थी। ज़बान उसका गाल थपथपाकर बाहर की जानिब बढ़े मगर वो बैठी रह गई। हम दोनों बराबर हैं तुम्हारे लिए। आगा जान के जुमले की बात अब तक समझ में उतर रही थी। वे गहरा सांस लेकर उठ गई। इशा की नमाज अभी पढ़नी थी। 3 रातें कबल हाशिम अपने कमरे की जानिब उल्टे कदमों दौड़ा था। चेहरे पे अजीब-सी बेचैनी थी और दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। कमज़ोरी वली अहमद की कमज़ोरी थी जो उसके हाथ लग गई थी। ऐसा लग रहा था गोया हिफ़्त अक़लीम हाथ आ गया था। कमरे का दरवाज़ा एहतियात से मुतहरिक करके वो अंदर आया। फिर मोबाइल कमीज़ की जानिब से निकालकर जल्दी-जल्दी कोई नंबर डायल करने लगा। इसके चेहरे पे पसीना चमक रहा था और हाथों में अनदेखी सी लर्ज़िश थी। हसन, हसन शाह तुमने कहा था कि वली की कोई कमज़ोरी चाहिए तुम्हें, यही ना? हसन ने इसकी कमज़ोरी मेरे हाथ लग गई। वो एक लड़की से मोहब्बत करता है जिसे पाने की औकात तक नहीं है इसकी। और जानते हैं सिर्फ़ मैं दुश्मन नहीं हूँ इसका इस मामले में, तो इस लड़की के भाई भी खून के प्यासे हो जाएँगे इसके। तेज़-तेज़ धीमी आवाज़ में बोलता वो बहुत पुरजोश सा लग रहा था। बार-बार हाथ की पोंछ से पेशानी पर आया पसीना भी साफ़ कर लेता और मुड़कर मोहताज सा दरवाज़े को देख लेता। हाँ, आऊँगा कल ही तुम्हारे डेरे पर, मुझसे तो ये रात ही नहीं गुज़री जाएगी। वो भूली सास के साथ एक कमीनी की मुसन्नत में बोलता हुआ ज़हनी मरीज़ लग रहा था। फिर अलविदाई कलमात कहकर फ़ोन रखते जैसे ही पलटा इसका मोबाइल दोबारा बज उठा। अचत्ते से आँखें छोटी करके उसने नंबर को देखा, फिर कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगाया। दूसरी जानिब की बात सुनकर बेअख्तियार तेवरी चढ़े और दाँत जम गए। इस कर्म को कुछ करना ही पड़ेगा हफ़ीज़, मैं आता हूँ सुबह डेरे में, फिर देखते हैं क्या करना है। फ़ोन रखा, मोबाइल बेड पे डाला और तने चेहरे के साथ कमरे में दाएँ से बाएँ फिर बाएँ से दाएँ टहलने लगा। घड़ी की टिक-टिक वैसे ही जारी थी। इसे लाकर जेल की सलाखों के पीछे पटक गए तो वो बिलबिलाकर दोबारा सलाखों तक भागते आया। ऑफ़िसर अब झुककर सख्त चेहरे के साथ ताला लगा रहा था। इसने सलाखों को ज़ोर से झटका दिया। मुझे निकालो बाहर यहाँ से, मैं बेकसूर हूँ, मैंने इस लड़की के साथ कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही है वो, मेरी बात तो सुनो, खोलो ये ताला। अपनी बात पे कोई भी रद्द-अमल ना पाकर इसका दिमाग बना उठा था। एक बार फिर सलाखों का झटका दिया मगर वह ज़मीन में इसी तरह गड़ी रही। अलबत्ता झुककर ताला लगाते ऑफ़िसर ने करख्त सा चेहरा उठाकर इसे ज़रूर देखा था। मुजरिम के ये बोल देने से कि इसने कुछ नहीं किया वो बेगुनाह नहीं हो जाता। अगर तूने वो सब नहीं किया तो फिर क्या इस लड़की ने शौकिया नाम लिया तेरा? चुप कर पड़ा रहे अंदर। नागवारी से कहकर वो आगे बढ़ा तो उसकी आंखें गुस्से से नम हो गईं। दांत पर दांत इतनी जोर से जमाए कि कनपटी की रग तक फड़क उठी। तुम सब जानते हो कि मैं बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ, सब पता है तुम लोगों को, मगर हाशिम की मुरीदी में एक लफ्ज़ तक मुँह से निकालना हराम है तुम जैसे हरामज़ादों का। बहुत बुलंद फिरती आवाज़ में इसने कहा तो टेबल के पीछे कुर्सी पर बैठा थाने का एएसपी तब कर इसकी जानिब घुमा था। अरे लड़के, ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है हमारे सामने, समझा? एक तरफ इस मौलवी ने दिमाग ख़राब कर रखा और दूसरी तरफ तू अपनी कसर निकाल के अब सारा नज़ला हम पर ही गिरा रहा है। चुप करके पड़ा रहा है अंदर, नहीं तो ये जो डंडा है ना बहुत ज़ोर सा लगता है। अपना मखसूस डंडा इसे दिखाकर गोया धमकाया मगर वली को अब कोई चीज़ नहीं डराती थी। सलाखें ज़ोर से पकड़े वो आगे को हुआ और उसकी आंखों में देख कर गराया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, समझ लो तुम सब भी। और हाँ, वो रहा वो हाशिम, इसे तो मैं देख लूँगा, बल्कि बाहर निकल के मैं तुम सबको देख लूँगा एक-एक को। अगर मैंने कब्र की मिट्टी ना चटाई तो मेरा नाम भी वली नहीं। अच्छा तो तुम्हें लगता है तुम बहुत ताकतवर
ताकतवर हो, हाँ, बहुत ज़बरदस्त हो तुम कि अकेले सब मुकाबला कर लोगे हम सब का, और साथ में इस हाशिम का भी, वो जैसे एक दुनिया अब जानवर के नाम से याद करती है, इससे बदला लोगे तुम? बेटा होश के नाखून लो, और जो भी हम कहें खामोशी से इसका इतराफ़ कर लेना, नहीं तो तुम भी नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये थाने बहुत से केस को अदालतों तक ले जाने ही नहीं देते। इनके फैसले ये बड़े-बड़े हाशिम जैसे कमीने लोग ही क्या करते हैं। यहाँ के जज, जूरी और जल्लाद यही लोग होते हैं। अगर जो भी इनकी किसी खून की रौगर्दानी करता है तो अंजाम बहुत भयानक और बहुत हौलनाक होता है। वो इसके सामने खड़ा अब के से बहुत हमदर्दी से समझा रहा था, मगर वली ने खून आशिम नज़रें इस पर तगाड़ी, सलाखों के करीब चेहरा लाकर जब वो बोला तो आवाज़ भी अजीब सी लर्जिश थी, ऐसी जैसे शदीद तैश के वक्त होती है, ऐसे जैसे बहुत कुछ सह लेने के बाद बेखौफी के वक्त आती है। वो ऐसा इसलिए बन गया साहब क्योंकि आप अपनी ड्यूटी के वक्त सो रहे थे, और आप जैसा हर अवामी खिदमतगार अपनी ज़िम्मेदारी के साथ ऐसे मुजरिमों के हाथ रोके तो नौबत कभी भी यहाँ तक ना आए। वो इन फैसलों के जज, ज्यूरी और जल्लाद सिर्फ इसलिए बन जाते हैं क्योंकि आप लोग इनको इतनी इजाज़त देते हैं। अगर आप ये डंडा इसके हाथ पे पकड़ा, डंडे की जानिब उँगली से इशारा किया, अगर इसे मुझ जैसे को दिखाने के बजाय इन्हें दिखाते तो आज मैं नहीं इन सलाखों के पीछे होता, मगर आपकी बुज़दिली ने सब कुछ तबाह कर दिया। इस माशरे के हर तीसरे फ़र्द की ज़िम्मेदारी की तबाही के ज़िम्मेदार आप जैसे लोग हैं। लेकिन सर, आप लोग इन बड़े लोगों को नवाज़ते-नवाज़ते क्यों भूल जाते हैं कि जो बच जाते हैं वो इनसे भी बड़े जानवर बन जाते हैं, और मैं अपने सीने को बजाया जल्द या बदी मगर ज़रूर एक दिन इन सबसे बड़ा जानवर बन जाऊँगा, और इनको कच्चा निकलते हुए मेरे हलक में एक दफ़ा भी फंदा नहीं लगेगा। एक झटके से सलाखें छोड़ता वो दीवार से लगकर जा बैठा, मगर एसपी अब तक जमा हुआ था। बिना पलक झपके वो इस नौमर से लड़के को देखा गया, जिसके लहजे की तपिश और आँखों से बरसती आँख ने गोया इसके अंदर सब कुछ जलाकर खास्तर कर दिया था। दूसरी जानब वो घुटनों के सर्दियों मुसलसल एक की बात बड़बड़ाए जा रहा था, मैं इनसे बड़ा जानवर हूँ, मैं इनसे बड़ा जानवर बनकर दिखाऊँगा। और यही वक़्त था कि जब इसने इंतकाम के सफ़र पर निकलने का फ़ैसला किया था। इस गाँव को छोड़कर पढ़ लिख कर कुछ बनने की ख़्वाहिश जैसे इन सलाख़ों के पार दम तोड़ गई थी। अगर कुछ बाकी रह गया तो वो चिंगारी जो हर पल इसे अंदर ही अंदर सुलगा रही थी। मैं इनसे बड़ा जानवर बनकर दिखाऊँगा। इसकी सरगोशी अब बहुत सरसी धीमी आवाज़ में बदलती जा रही थी। हाशिम थाने में दनदनाता हुआ दाखिल हुआ तो एकदम से थाने में हलचल सी मच गई। कुर्सियाँ बिछाई गईं, बेसख्ती से सलाम झाड़े गए, मगर वो तो जैसे इधर से भी वली से मिलने आया था। कुछ एतराफ़ किया इसने। एएसपी ने इसे ढीले से अंदाज़ से बैठने का इशारा किया तो वो चार व नाचार बैठ ही गया। क्या इसके साथ ये सब करना ज़रूरी है? हाशिम की तेवरी के बेख्तियार चढ़ी थी, आँखों में उतरती ना समझी ने जैसे इतराक़ का लम्हा पार किया तो इसने एक झटके से हाथ टेबल पर मारकर एएसपी को गोया जगाया। क्या तुम हमदर्दी करने लगे हो इससे? क्या मेरी मदद करने का इरादा बदल लिया है तुमने? बोलो क्या हुआ है? ससराते हुए अंदाज में एसपी भी उबैद के माथे पर बल पड़े। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इसके साथ ये सब करना क्या ज़रूरी है? अगर इसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना करना चाहते हो तो किसी अज़ियत किसी ज़िल्लत के बगैर भी कर सकते हो, फिर सारे तमाशे की भला क्या ज़रूरत रह जाती है? ओ हाशिम बहुत कुछ समझता सीधा हो बैठा था, फिर नफ़रत से पुर लहजे में खोया हुआ। इसका मतलब है कि मैं इससे शदीद नफ़रत करता हूँ, और वैसे वो मौत देना चाहता था जिसमें इसकी साख बाकी रहे और वो अंदर से इसका वजूद मर जाए। इसकी जान लेकर मैं इन अज़ाबों से आज़ाद नहीं करवाना चाहता। तुम इससे इतराफ़ कराओ, मुझे ज़्यादा दरस देने की ज़रूरत नहीं। जैसे मुझे तो पता ही नहीं कि तुम खुद कितने नेक हो। एक हथेली सी नगाह इस पर डालकर वो कराया तो अब के एसपी की पेशानी लकीर के जालों से भर गई थी। मैं इससे इसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कैसे इतराफ़ करवा सकता हूँ? हाँ, जिसे तुम्हें तो पता ही नहीं है कि किसी से जबरी इतराफ़ किस तरह करवाया जाता है। देखो अब उबैद, इसने हाथ उठाया, मुझे इसका इतराफ़ चाहिए किसी भी कीमत पे, और तुम मुझे इसका इतराफ़ ला कर दोगे। अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो मुझे छोड़ो, 1 घंटा इसके साथ अंदर, इससे मैं खुद सब कुछ निकलवाऊँगा। मगर हाशिम वो एक नौअमर बच्चा है, इसके आगे ज़िंदगी पड़ी हो। जिस्मानी तशद्दुद के बाद तो अच्छे-अच्छे इंसान ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं। कोई और रास्ता देख लो, हज़ार तरीके हैं मामला सुलझाने के। इस तरह का ज़ुल्म मत करो जो तुम आगे अफ़ोर्ड नहीं कर सको, क्योंकि इंतकाम कभी ख़त्म नहीं होता। आज तुम इसे जानवर बनकर दिखा रहे हो, कल को वो भी तुम्हें जानवर बनकर दिखाएगा। ये मत भूलना, कारवां भी इसी कायनात का एक बहुत वाज़ेह हकीकत है। उबैद किसी भी तरह बस इसे कायल करना चाह रहा था, मगर हाशिम पे तो गोया कोई जुनूनी सी कैफ़ियत सवार थी, बदला लेने की कोई आग थी इसके अंदर जो बुझे ना बुझती थी। मुझे कुछ नहीं पता उबैद, इसे इतराफ़ करो। अगर तुम इस कदर नरम दिल होगे तो किसी पे तशद्दुद नहीं कर सकते तो मैं भेज देता हूँ अपने आदमियों को, इन्हें किसी पर रहम नहीं आता। बोलो बताओ। एएसपी चंद पल ठंडे तासुरात से इसका चेहरा देखता रहा, फिर इस्पात में सर हिलाता वापस सीधा हो बैठा। ठीक है, मैं करवाता हूँ इससे इतराफ़, मगर इसके बाद क्या इरादा है तुम्हारा? क्या करोगे इस बच्चे के साथ? हाशिम इस सवाल पे मुस्कुराया था, और वो ऐसी मुस्कुराहट थी बैत की परेशानी पर उभर कर
भरा हिल बिल ढीला पड़ गया था। इसके बाद मैं माफ़ी तलाफ़ी करवा के इसे वापस घर ले जाऊँगा, मगर तब तक वली के अंदर मौजूद सब कुछ ख़त्म हो गया होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आखिरी जुमले जैसे वो खुद से बोल रहा था, बहुत मध्यम आवाज़ में। फिर चेहरा उठाकर एसपी को देखा। कोई रहम नहीं करता इस पर। एतराफ़ ना करे तो चमड़ी उधेड़ कर रख देना, इसकी खाल खींच लेना जिस्म से, मगर मैं ना नहीं सुनूँ तुम्हारे लब से अब। कहते के साथ ही वो उठा और किसी की जानिब देखे बगैर जैसे ही आया था वैसे ही चला गया। एएसपी अब तक अपनी जगह पर साकत सा बैठा था। इसने सर घुटनों पे दे रखा था और वीरान आंखें लॉकअप की कच्ची ज़मीन पर जमा रखी थी। यकायक बहुत से लोगों की आवाज़ पर इसने सर उठाया। 2-3 हलाकार सलाखों के इस पार खड़े इसे ही देख रहे थे और दूसरा ऑफिसर झुककर इसके लॉकअप का ताला खोल रहा था। अब वो गर्दन पूरी उठा इन लोगों को देखता रहा। पूरी की हड्डी न जाने क्यों सनसना उठी थी। एहलकारों ने अंदर दाखिल होकर इसे उठाया। कहाँ कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ो। मुसलसल मज़म्मत करता वो अपना बाजू एहलकार की सख्त गिरफ्त से छुड़वा रहा था, मगर वो एक बहुत जानदार किस्म का आदमी था। इसकी गिरफ्त से निकलना आसान नहीं था। एक कमरे में ले जाकर इसे कुर्सी पर कोया पटका गया और फिर एहलकार को घूमकर इसके सामने रखी कुर्सी पर जा बैठा। वो शायद इस थाने का टॉर्चर सेल था। कमरा ना ज़्यादा बड़ा था और ना ही ज़्यादा छोटा। दरमियान में एक मेज़ रखी थी जिस पर चंद कोरे कागजात और कलम रखे थे। मेज़ के आमने सामने सिर्फ 2 कुर्सियाँ थी, एक जिस पर वली बैठा था हथकड़ी में बंधे हाथ गोद में पड़े थे, और दूसरी जानिब पर रख्त चेहरे वाला भारी सा एहलकार था जिसकी चुपती नजरें वली पर साकत थी। बाकी के एहलकार दरवाज़ा बंद करते बाहर की जानिब बढ़े तो वली चौंका। चेहरा घुमाकर पहले बंद दरवाजे को देखा, फिर सामने बैठे आदमी को। क्यों किया तुमने इस लड़की का रेप? इसकी अजीब-सी आवाज़ कमरे के दीवारों से पलटकर आती अजीब सा इर्तिशाद पैदा कर रही थी, मगर वली इसके सवाल पर जम गया था। मैंने पूछा, क्यों किया तुमने इसके साथ ऐसा? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, समझे। एक झटके से इसने हथकड़ी में बंद हाथ टेबल पर मारे तो कमरा इसकी आवाज़ से गूंज उठा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुमने किस वक़्त इसका रेप किया और क्यों? इसके सर के ऊपर झूलता बल्ब हौले-हौले दाएँ से बाएँ और फिर बाएँ से दाएँ लहरा रहा था। इसकी तेज़ रोशनी आँखें में चुभन पैदा कर देती और सर में दर्द की ठेसें उठने लगी थी। मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया, तुम ये बात अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन मेरे सामने ये अदाकारी। इसकी बात पूरी हुई ना हुई थी कि ऑफिसर घूमकर इसकी कुर्सी की जानिब आया, फिर इसको बालों से पकड़कर इसका सर टेबल पर दे मारा। 1 दफ़ा, 2, 3, 4। इसका जैसे सर घूम कर रह गया था। एहलकार ने इसका चेहरा बालों से दबोचकर ऊँचा किया। इसके माथे से खून की पतली सी लकीर बहकर कनपटी से जज़्ब हो गई थी। अधखुली आँखों से इसका हल्का चेहरा नज़र आया था। तुम 24 अक्टूबर की रात कहाँ थे? फिर पूछा। अपने दोस्त के साथ था मैं। इसने भी इसी बेखूबी से कहा तो आपके हल्का सीधा हुआ। फिर इसकी कुर्सी को एक लात मारी तो वो बंधे हाथों के साथ दूर जा गिरा। दाएँ घुटना और हाथ बुरी तरह छिल हो गया था। सर बहुत ज़ोर से कुर्सी के हत्थे से टकराया था। बोलो, कहाँ थे 24 अक्टूबर की रात तुम? वो इसी करख चेहरे के साथ इसके सामने पंजे के पल बैठा, फिर इसका सर बालों से पकड़कर ऊपर को उठाया। मैं अपने दोस्त। उल्टे हाथ का भारी थप्पड़ से पड़ा तो इसका चेहरा एक जानिब को घूम गया। गहरे-गहरे साँस लेते उसे खाँसी आई थी। कहाँ थे 24 अक्टूबर की रात तुम? एक बार फिर पूछा तो इसने अब के गुलाबी आँखों से एहलकार को देखा। तुम्हारी माँ के साथ था। एक ज़ोरदार मुक्का इसके जबड़े में पड़ा तो वो दीवार से जा टकराया। एहलकार इसे उठाकर सीधा करता कुर्सी की जानिब लाया, फिर कमरे के अंधेर से हिस्से से एक मोटा-सा डंडा उठा लाया। वली की अधखुली आँखों ने इस डंडे को देखा, फिर एहलकार को। कहाँ थे 24 अक्टूबर की रात तुम? अपने दोस्त के। मोटा सा डंडा बहुत ज़ोर से मारा था इसके सर पर। एक सेकंड के लिए सारी दुनिया चकरा कर रह गई और फिर ये हर दफ़ा के इस्तीफ़ा पर इसका एक सा जवाब इसके जिस्म में ज़रबे लगाता गया। इसका पूरा जिस्म सुर्ख़ हो गया था और इतना दर्द करने लगा था कि कोई पीप का कोई पक्का हो फोड़ा हो जिस पर बजा-बजा गहरे नील पड़ गए थे, और सर तो जैसे मुस्तकिल घूम रहा था। चकराते सर के साथ इसका दिल मतलाया तो इसके मुँह से कह निकली। गरम-गरम आँसू भी आँखों से बहने लगे थे। बहुत बुरी हालत में इसे लॉकअप में लाकर पटका गया था। इस सारी रात दर्द से बिलखता वली करा रहा था। शायद ठेसों के बायस वो कभी एक जानिब लड़ता और कभी दूसरी जानिब को। आंखों से आंसू वैसे ही बह रहे थे और गले में एक बार फिर से बहुत कुछ अटकने लगा था। अभी तो चंद दिन पहले ज़िंदगी अच्छी लगने लगी थी। अभी तो इसने इसके नरम सी मोहब्बत को ठीक से महसूस भी नहीं किया था। अभी तो उसकी आंखों के सैर से आज़ाद भी नहीं हो पाया था। अभी तो बहुत कुछ बाकी था, मगर वो फ़ना होता जा रहा था। औंधे बड़े लड़के को एक-एक करके इसकी हर अदा याद आने लगी
لگی تو دل کا ہر زخم ہرا ہوتا گیا، آنکھوں سے بہتے آنسوں میں شدت آ گئی، اوپر والے سے شکوے بڑھتے گئے، اور پھر اس کی سسکیوں کی ہلکی ہلکی سی آوازیں لاک اپ میں گونجنے لگی۔ رات کے سپہر سنسان پڑا تھا، نہ اس کے دلوں سسکیوں کی لپیٹ میں آ رہا تھا۔ وہ اسی طرح اوندھے منہ لیٹا اب کے بلند آواز سے رونے لگا تھا۔ اندر اتنی توڑ پھوڑ مچی تھی کہ کچھ بھی سجائی نہیں دیتا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کس کس کو زخم کو رہے، کس کس درد کا ماتم کرے، کس کس دم توڑتی خواہش کا لہو اپنی گھٹتی رگوں کے ساتھ لپٹا جائے۔ سب ختم ہو رہا تھا، وہ مٹی ہو رہا تھا، راکھ کا ڈھیر بنتا جا رہا تھا۔ اب کی سسکیاں بہت بلند ہو کر رونے کی آواز میں بدل گئی تھیں۔ پھر وہ بامشکل بے طرح دکھتے جسم کو گھسیٹتا سیدھا ہوا، جوڑ جوڑ نس نس میں درد خون کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ زندگی تھی، کسی بھی طرح اس پر رحم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ آس پاس پلتے لوگ تھے جو کسی بھی طرح اسے اس کے اندھیر تاریک ماضی سے نکلنے ہی نہیں دیتے تھے، اسے جلا رہے تھے، پل پل مار رہے تھے۔ کمر دیوار سے لگائے گھٹنوں سمیٹ کر سینے سے گٹی گٹی سی سسکیوں کی آواز اب تک سنائی دیتی تھی۔ اچھی زندگی کی خواہش ہے، کسی ایسی جگہ رہنے کا خواب جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہو، سب کچھ اس لاک اپ میں نگل لیا تھا۔ اگر اس کے اندر کچھ باقی رہ گیا تو وہ صرف انتقام کی چاہ تھی۔ جنہوں نے اس کی زندگی برباد کی تھی، ان کا خون پینے کی پیاس رہ گئی تھی بس۔ عمل کی محبت اور اپنی ذات کا احساس تو اسی رات ختم ہو گیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ کبھی اب کسی سے محبت نہیں کر پائے گا۔ آج اس کے اندر سب کو ختم ہو رہا تھا۔ آنسو کو بے دردی سے رگڑ کے اس نے اپنی ابھرتی سسکیوں کا گلا گھونٹ دیا، دانت سختی سے جما لیے، سب سے آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھی، مگر اب بس، اب وہ نہیں روئے گا۔ آنسو روکنے کے بعد گلے میں پھندے پڑنے لگے، دل بند ہونے لگا، مگر نہیں، اب ان آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں ٹپکنا تھا۔ اس کے اندر جلتی آنکھ نے اس کے آنسو کو خشک کر دیا تھا۔ لاک اپ میں اب کے سسکیوں کی آواز نہ سنائی دیتی تھی، بس عجب سی وحشت پھیل گئی تھی۔ گھٹنوں کے سینے سے سمیٹ کر بیٹھا لڑکا درد کی انتہاؤں پر پہنچنے کے بعد اب کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک الاؤ تھا جو بھڑک رہا تھا، بس ایک راکھ تھی جس کے اندر آخری چنگاری باقی رہ گئی تھی، اب کچھ نہیں تھا اس کے اندر۔ اس نے سر دیوار کی پشت سے ٹکایا اور خالی خالی نظروں سے چھت کو دیکھے گیا۔ سیاہ رات میں گاؤں کی پہاڑی سے کسی بھیڑیے کے رونے کی آواز آئی تھی، جس سے اب نے کسی زخمی ساتھی کے دکھ میں شرکت کا اعلان ہو۔ اس نے سیارہ جھکا کر اپنی زخمی جسم کو دیکھا، زخم کی نمی آنکھوں میں تیرنے لگی، مگر آنسو باہر نہیں گرا، پلکوں کی باڑ پر ٹھہر گیا۔ بھیڑیے کے رونے کی آواز اب تک سنائی دے رہی تھی۔ تاریک لاک اپ میں بیٹھا لڑکا زخمی بھیڑیا بن گیا تھا، جس کی واپسی کے اب سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ دوسری جانب زمان نے بذات خود مولوی صاحب سے جا کر ملاقات کی تھی، جس کا نتیجہ کچھ بھی نکلا تھا۔ وہ اسی باتوں میں ستے کی حرکت ولی کی ہے، ان کی بیٹی سے بات کرنا چاہتے تھے زمان، مگر مولوی صاحب نے سختی سے منع کر دیا کہ اب ان سب کی کچھ ضرورت نہیں، ولی کو سزا ہوگی اور وہ اسی طرح سلاخوں کے پیچھے سڑتا رہے گا۔ پریشانی سے جب وہ گھر لوٹے تو بی جان دروازے پہ ہی ٹکی تھی۔ ان کی شکستہ انداز پر ان کا اپنا وجود بھی ڈھا سے گیا تھا۔ عمل نے تو پھر کمرے کے دروازہ ہی نہیں کھولا، خود کو اندر بند کر لیا اور مستقل روئے جا رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کرے تو کیا کرے، جائے تو کدھر جائے، کہے تو کسے کہے۔ زمان صبح ہوتے تھانے پہنچے۔ ولی کی ابتر حال دیکھ ان کے دل کو دھک سا لگا تھا۔ اتنا تشدد کرنے کی اجازت کس نے دی ہے آپ لوگوں کو؟ وہ ایس پی پہ دھاڑے تھے، مگر جواباً وہ خاموش رہا۔ ولی نے سردار بابا کی آواز سننی تھی، مگر سر نہیں اٹھایا۔ اس کا دل ہر شے سے اجاڑ ہو گیا تھا۔ یہ اعترافی بیان کی کارروائی ہے زمان صاحب، حوصلہ رکھیے۔ حوصلہ رکھوں؟ انہوں نے زخمی آنکھوں سے ایس پی عبید کو دیکھا تھا۔ اس طرح کا تشدد کیا نتیجہ لے کر نکلتا ہے کیا آپ نہیں جانتے؟ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے جس کا جرم ابھی ثابت نہیں ہوا، اور آپ لوگوں نے ایک رات میں کیا حالت کر دی ہے اس کی۔ ان کی گرج سے ایک پل کو تھانہ لرزا کر رہ گیا تھا۔ شیخ صاحب حوصلہ رکھیے، میں دیکھتا ہوں کہ میرے بیٹے کو آپ لوگ اس سب میں کیسے گھسیٹتے ہیں۔ اگر آپ اسے کسی نے بھی ہاتھ لگایا تو میں آپ کا یہ تھانہ تہس نہس کر کے رکھ دوں گا، اور اب بات آپ سے کورٹ میں ہوگی۔ ایک جھٹکے سے وہ کہہ کر اٹھے تو ان کے ساتھ وجود گارڈ پینی کے ساتھ باہر کی جانب ہو لیے۔ عبید نے بے اختیار پریشانی کے ساتھ پیشانی مس لی تھی، پھر موبائل اٹھا کر جلدی جلدی کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ہاشم اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تمہارے سردار بابا کیس کرنے کی دھمکی دے کر گئے ہیں۔ جو وہ بہت آرام دہ سا بیٹھا تھا یکدم سیدھا ہوا، پریشانی پر یکدم فکر مندی چمکی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ جی یہی بکواس ہے جو سن رہے ہو تم۔ تیار رہو اب خود کو، کیونکہ تمہارے سردار بابا بہت غصے میں گئے ہیں یہاں سے، اور چونکہ یہ صرف ایک ڈھونگ تھا تو تم اپنی کمر مضبوط رکھنا، کیونکہ جتنے پیسے تم نے اس مولوی کو سب کروانے کے لیے دیے نا، اس میں وہ الزام تو لگا سکتا ہے، مگر عدالت میں گواہی وہ کبھی نہیں دے گا اور سونے پر سہاگا۔ اس سارے کیس میں ولی کے پاس ایک نہیں دو ایلی بائز ہے، ایک اس کے دوست اور دوسرے اس دوست کا باپ جو کہ خود بھی ایک وکیل ہے۔ اب جو سوچنا سوچو، کیونکہ میں تمہیں پہلے ہی منع کر چکا اس سارے قصے سے۔
एएसपी सर्द लहजे में बोलता हुआ एकदम खामोश हुआ तो हाशिम ने मुट्ठी बंद करके लबों पे जमा ली। इसका सारा खेल खेल इस पर उलट रहा था। अगर जो मौलवी ने मुँह खोल दिया या फिर इसकी बेटी ने, तो फिर वो कहीं का नहीं रहेगा। कोई केस नहीं होगा, किसी ट्रायल तक नौबत नहीं जाएगी। बस देखता उस मौलवी को, तुम जब तक इसका मुँह बंद रखना। परेशानी में बोलता हुआ जल्दी से वहाँ से उठ गया। एएसपी ने इसे तासुब से जाते देखा, फिर लॉकअप में बंद लड़के को जो रात से एक ही अंदाज में बैठा था। इन्हें बेसाख्ता इस पे तरस आया। अजमल ताला खोलो, कुछ सोच के अजमल को बोलता वो अपनी जगह से उठकर लॉकअप की जाने पड़ा था। वली इसने आवाज़ पे सर उठाकर सुनसान आँखों से एसपी को देखा था। इन आँखों की वहशत देखकर वो बेदंग रह गया था। खाना क्यों नहीं खाया तुमने? इसके साथ रखी ट्रे को देखकर इसने वली की जानिब चेहरा फेर कर कहा, खाना जुका तू रखा हुआ था, भूख नहीं थी मुझे। इसने कहा, फिर सिर से घुटनों में ले दे लिया। एएसपी इसके करीब चलता, पंजे के बल इसके सामने बैठा, फिर इसके सिर झुके सर को देखा। धूप के बाद इसके सियाह घने बाल चमक रहे थे, नस्वारी आंखें जमीन पे चमका रही थी। उठी सी खूबसूरत नाक और बारीकी से बने होठ, वो बड़ा शाबा बहुत खूबसूरत लड़का था। अपनी जवानी में पहुँच के यकीनन इसने क़यामत ढानी थी। तुम्हारे आगे ज़िंदगी पड़ी है, अभी इसे ज़ाया मत करना किसी भी किस्म के इंतकाम में। जितनी आहिस्तगी से इसने कहा था, इतनी ही तेज़ी से वली ने सर उठाया था। ये ज़िंदगी बनी है इंतकाम के लिए सर, मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इंतकाम लेने के। मैंने इस ज़मीन पर खुश वगैरह नहीं दे सकता। उन्होंने मुझ पर ज़मीन तंग कर दी थी, आप देखिएगा मैं इन पर ज़मीन कैसे तंग करूँगा। अभी नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल नहीं तो 20 साल बाद, लेकिन ये मरेंगे और इन्हें निस्वारी आँखों के साकेत पुतलियाँ गुलाबी पड़ने लगी थी। मैं मारूँगा। धीमी आवाज़ में अजीब सी घर्राहट थी, जैसे किसी ज़ख्मी शेर की धाड़ में होती है। एएसपी इसे चल बल देखे गया, और इसके बाद क्या तुम्हारा क्या होगा मेरा? वो इस सवाल पर हँस दिया। एक आँखों में जमे आँसू पलकों पर ठहरे हुए थे। शायद ये नहीं कह सकता, इसकी हँसी भी नम सी महसूस होती थी, आँसू से भीगी हुई। इस सब के बाद मैं खुद को भी ख़त्म कर लूँगा। जिस जगह से इनकी लाश मिलेगी, इसी जगह से मेरी लाश भी मिलेगी। एएसपी चंद में मबहूस सा बैठा रह गया। मेरे लिए इसी ज़मीन पर कुछ भी नहीं है सर, मैं यहाँ सिर्फ ज़िल्लत उठाने आया था, बस किसी की हराम तस्कीन का नतीजा हूँ मैं, और ऐसे नताइज का मरना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा मरना ज़रूरी है और मैं मरूँगा। कभी अगर आपको मैं ना मिली तो समझ लीजिए वली की सर्द मुर्दा खाने में होगा, लेकिन क्योंकि मेरी मंज़िल अब वही है, ना इससे कुछ आगे और ना पीछे। उबैद को इसकी बातों से वहशत हुई तो लॉकअप से उठ आया। वली ने आँखें मूंदकर सर पर फिर दीवार से टिका दिया। आँखों का लाया अमल अभी तय करना बाकी था। वो कमज़ोर और ताकतवर बनेगा, इतना ताकतवर कि हाशिम और हुसैन को मौत के घाट उतार सके। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मौलवी साहब ने इसके खिलाफ रिपोर्ट मौलवी साहब ने इसके खिलाफ दर्ज रिपोर्ट वापस ले ली थी और वली थाने के बाद सीधा अस्पताल ले जाया गया। इसके ज़ख्मों का इलाज ज़रूरी था। अस्पताल से फारिग होने के बाद वो हवेली में दाखिल हुआ तो बख्तियार और निसानत तनफुर से इसे देखा, कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ा दिए। इसे कुछ भी महसूस नहीं है, न ज़िल्लत न इज़्ज़त। बीजान बाबा इसके ज़ख्मी चेहरे पे कभी इसके बाजू पे हाथ फेर कर रो पड़ती थी। 2 दिन से इसी खामोशी में कट गए। वो अपने कमरे में पड़ा रहा, किसी से कोई बात नहीं की। फिर एक शाम वो लॉन में चला आया। शाम की चाय पर बीजान और सिर्फ सरदार बाबा ही थे। इसे आता देखा दोनों मुस्कुराए, मगर वो नहीं मुस्कुराया। आहिस्ता से करीब आकर बैठ गया। बैठो बेटा, जमान ने कुर्सी की जानिब इशारा किया, मगर इसने नफ़ी में सर हिलाया। सरदार बाबा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, और कल मेरी बात हुई है असगर से। इसने कहा है कि मेरा एंट्री टेस्ट क्लियर हो गया है, अब सिर्फ दाखिला लेना यूनिवर्सिटी में। लेकिन वो एक पल को रुका तो जमान, जो इसके बाद गौर से सुन रहे थे, मोहताज से होकर बैठे। हाँ कहो, मैं हॉस्टल में रहना चाहता हूँ। चंद लम्हों के लिए कोई कुछ ना बोला। ठीक है, रह लो, पहले कोई मसला नहीं, बताओ कब से हैं एडमिशन्स? ज़मान ने फ़ौरन बात संभाली थी, और वो भी इस तरह हकीकत यही चाहते थे कि वो यहाँ से कुछ अरसे के लिए चला जाए, इसलिए फ़राख दिली से इजाज़त दे दी। इसके जाने के बाद ज़मानी ने बेयकीनी से ज़मान को देखा था। आप कैसे इजाज़त दे सकते हैं इसे ज़मानी? उन्होंने टांग पर से टांग हटाई, फिर अपना कब मैच पर रखते हुए सीधा हो गए। ये इसके लिए बेहतर है वो यहाँ से कुछ अरसे के लिए चला जाए, दूर हो जाए इस हवेली से। वैसे भी आएगा तो वो यही ना, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, बस दुआ करो कि हमारा वली बदले ना, क्योंकि इसकी गैर मामूली खामोशी मुझे परेशान कर रही है। उन्होंने नज़रें दोबारा लॉन के रास्ते पर डाली, जहाँ से वह अभी-अभी गया था। बीजान ने दुखे दिल के साथ ठंडी सी सांस ली थी। चंद दिन बाद इसका एडमिशन हो गया, फिर वो अपना सामान बाँधने लगा। इसे हॉस्टल जाने की खुशी नहीं थी। इसे बस यहाँ से निकलना था, यहाँ से बाहर जाना था, क्योंकि इस हवेली में इसका दम घुटता था। बैग पैक करने में बीजान ने इसकी मदद की थी। वो किचन में रात के पहर किसी काम से आया तो देखा वो उदासी से किचन में खड़ी लॉन की जानिब खुलती खिड़की से बाहर को देख रही
थी। इसने कदम वापस से मुड़ लिया मगर वो आहट सर घुमाकर देख चुकी थी। वली इसने आँखें बंद कर ली थी। कुछ था जो इसके अंदर उभरा था, शायद इसकी धड़कन थी जिसकी आवाज़ ने इसकी समात को अपने शिकंजे में कैद किया था। जी बीजान, वो वहीं से दरवाज़े में नशिस्ता रहा, अलबत्ता इसकी जानिब अपना सरापा फैल लिया था। इनके दरमियान बहुत फासला था। धुली चाँदनी खिड़की के रास्ते किचन में गिर रही थी। कैसे हैं आप? नरमी से पूछा। वली इस नरमी से पिघलने लगा। इसके अंदर जमी बर्फ़ में इर्तिशाद सा उठा था। ठीक ठीक तो नहीं लग रहे। वो वहीं खड़े-खड़े बोली। इसने गहरा साँस लिया। ठीक हूँ, क्यों जा रहे हो? उफ़! क्या सवाल कर रही थी ये लड़की। इसने यासिर में जुगली आँखें उठाई। उमल की नज़रें इसी पर जमी थी। हॉस्टल की लाइफ़ बहुत अच्छी होती है, सुना है, बस वही एन्जॉय करने जा रहा हूँ। इसने लहज़े में बशात लाने की कोशिश की थी मगर आँखों की वीरानी बस का कोई इख्तियार नहीं था। अच्छा वो करीब चलिए। फिर इसने एक फ़ासले पर रुक गई। और यहाँ अगर तुम कभी बारिश बरसे तो इस गिरफ्त में किसी का हाथ थामोगी तो मैं कभी ये सोचूँगा वो पल को साक़त हुआ था। जब बुलाओगी आ जाऊँगा और अगर ना आए तो क्यों इतने सब मुश्किल सवाल करती हैं आप? मेरे सवाल आसान है वली बस आपके जवाब ज़रा मुश्किल है। अंदाज़ा है इन जवाबात को खुद पे उतारने के लिए कितनी हिम्मत दरकार होती है। कहाँ से लाऊँ इतनी ताकत मैं? आप तो जा रहे हैं, कभी मेरा भी सोच लिया करें क्योंकि इन आँखों को आपको हर पल हर लम्हा देखने की आदत हो गई है। जानते हैं आदत कितनी जानलेवा होती है। इसका सर खुद ब खुद नफ़ी में हिल गया था। इसकी आँखों में आँसू जमा होने लगे जिन्हें कभी न बहाने का इसने खुद से अहद ले रखा था और अब इसकी आंखों से गिरने को बेताब होने लगे थे। क्या थी लड़की? सहारा थी शायद। अपने शहर से इसकी सारी तकलीफ चुपके से चुरा लिया करती थी। इतनी जानलेवा तो अगर कोई नज़रों से पल भर को भी उछल हो जाए तो सांस तक लेने में दुश्वारी हो जाती है। वली क्या आप चाहते हैं मैं सांस ना लूँ? इसके पास जवाब नहीं था। चुपचाप खड़ा इस सुनहरी सी लड़की को देखे गया। इसकी मोहब्बत आज भी सीने को घूंट रही थी। इसने सोचा था कि अब वो कुछ भी महसूस नहीं कर पाएगी मगर वो गलत था, बिल्कुल गलत था। अमल की मोहब्बत मुर्दा शिवल्ली को फिर से ज़िंदा कर रही थी। मैं काबिल नहीं हूँ आपके। कुछ देर बाद इसने कहा तो आवाज़ में बहुत हल्की-सी लर्ज़िश थी, ऐसी जैसे किसी को खो जाने के खौफ़ की लर्ज़िश होती है, ऐसे जैसे किसी जान से प्यारे की तकलीफ़ पर होती है। वो उँगली उठा के से तंबिया के तो वो मुस्कुरा दिया। इतने अरसे में वो आज मुस्कुराया था। मैंने तो कभी अपनी मर्ज़ी की ही नहीं बीबी जी जब भी करेंगी आप ही करेंगी मगर के आगे के जुमले में जानती हूँ काबिल नहीं हूँ मैं आपके। मेरे माँ-बाप का पता नहीं है, मेरा आगे-पीछे कुछ नहीं है वग़ैरह-वग़ैरह। वैसे अब आपको निकल आना चाहिए इस सब से वली। लोग नहीं भूल रहे हैं तो ना भूलें, भाड़ में जाएँ। लोगों की परवाह किसे है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इनकी परवाह है तो जल्द इन सबको अपने ज़हन से निकाल दें। इसे सख्ती से वार्निंग देती हुए इसे समय देखने की चीज़ लगी थी। इस भला ये झिझकती शर्म थी और बहुत सा गिरेज़ भी आड़े आता था मगर वो जब हक़ बोलने पर आती तो इन सब में से कोई चीज़ भी इसके पीछे ना खिलती थी। वो बेवक़्त खुलकर सामने वाली लड़की नहीं थी, ना ही इसके हुस्न निगाह को चुंधिया था, बल्कि इसका हुस्न बहुत पुरसुकून था, नज़रों को तकलीफ़ ना देता था, तमयानियत बख्शता था। शुरू में वो इसे सिर्फ़ एक शर्माई लचाई सी दोजीशा सी लगती थी मगर हाँ, जब वो बोलने लगती तो क्या कदम उठाती थी। शायद इसका अंदाज़ ये खुद भी नहीं था। मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता। इसने आहिस्ता से इसकी चढ़ती उम्मीदों को हाथ से पकड़कर ज़मीन पर उतारा था मगर वो अपने नाम की एक ही थी। लेकिन मैं तो इसी के वादे के सहारे जीऊँगी जो आप मुझसे नहीं करेंगे। धुली चाँदनी सारे किचन को अपने लपेट में ले चुकी थी। हर्षिया चाँदनी से मुनव्वर होने लगी थी। अमल का नाज़ुक वजूद भी वली का ऊँचा सरापा। ज़िद मत करें, आप भी तो मुस्तकिल यही कर रहे हैं। मैं ज़िद कर रहा हूँ? इसने हैरत से उँगली सीने पर रखकर पूछा तो वो धीरे से मुस्कुराई। चारों तरफ चाँदनी सी तहलील होने लगी थी। आप नहीं कर रहे ज़िद सिर्फ़ मैं कर रही हूँ। ज़िद मैं ही कर सकती हूँ, आप नहीं करेंगे। ज़िद मैं आपको करने नहीं दूँगी। क्या मानते हो? अंदाज़ में गोया वली कोई मामूल पर चलती धड़कनों को यहीं गुनाह बढ़ा दिया था। ये लड़की इसके दिल पर हुकूमत करती थी जिस हक़ से करती थी ना। इसने होंठ दबाकर गर्दन के पीछे हाथ फेरा था। ख़्याल रखिएगा, चलता हूँ। इससे एक नज़र देखा भी नहीं और पलट गया। वो भागती हुई इसके पीछे-पीछे आ रही थी। इसकी बजती पायल ने इसके साँसों को उलझा सा दिया था। वो इसे आवाज़ देकर रोक नहीं रही थी। शायद जानती थी कि इस आवाज़ दी तो वो पत्थर का हो जाएगा, मगर इसकी आवाज़ को कभी नज़रअंदाज़ नहीं करेगी। इसके पीछे मुसलसल बजती इसकी पायल इसे रोक रही थी, मगर वो कैसे रुक सकता था? रात की तारीकी में डूबी हवेली में इसकी बजती पायल शोर करने लगी थी, मगर वली नहीं रुक रहा था। फिर एक जगह साँस की आवाज़ आना बंद हो गई। शायद वो कहीं पीछे रह गई थी। इसने गुलाबी पड़ती आँखों को ज़ोर से बंद किया और कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। चंद पल दरवाज़े से लगकर खड़ा हुआ, हिम्मत नहीं रही थी हिलने की। दूसरी तरफ वो सुकून का सहारा लिए खड़ी नमकीन आँखों से इस रास्ते को देखे गई जिससे वो गुज़र कर गया था।
और फिर इस रात दो नफूस ने करवटें बदलते गुजारी थी। अजीब सा रिश्ता था इनका, ना इजहार था ना कोई वादा, कुछ भी नहीं था मगर फिर भी बहुत कुछ था। सुबह वो चला गया तो अमल खिड़की से हट आई। गम तो बस इसका इसी बात का था कि सांस रुक रुक कर आती थी, दम निकलता नहीं था और याद थी कि साथ छोड़ती नहीं थी।